مہینہ نہیں آتا ہے، اس کی افضلیت، اس کی خصوصیت، اس کی بزرگی، اس کی کرامت صرف اس بات پر ہے کہ اللہ خود اپنے کلام کے اندر ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کو جو عظمت ملی ہے، یہ دستور جو آیا ہے، یہ مادر حیات جو آیا ہے، انسانیت کو حسین زندگی بنانے کا جو قانون آیا ہے، یہ قانون جس مہینے کے اندر نازل ہوا ہے اور بنایا گیا ہے، بھیجا گیا ہے، یہ مہینہ رمضان کا تھا۔ رمضان کی برکت قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو قرآن جہاں پڑھا جائے وہ جگہ بھی مبارک ہوتی ہے، جس زبان سے تلاوت ہو وہ زبان بھی بڑی مبارک والی ہوا کرتی ہے۔ تصحیح قرآن ہو، قرأت قرآن ہو اور تعظیم قرآن ہو، تکریم قرآن ہو اور حاملین کی بھی تکریم ہو، یہ جگہ بڑی مبارک جگہ ہے۔ کہیں پہ گھور لگائے جاتے ہیں، گڈھے کھودے جاتے ہیں، گندی نالیاں نکالی جاتی ہیں، وہ جگہ کتنی مبارکباد والی ہوتی ہے جن جگہوں پر اللہ کا مقدس کلام پڑھا جاتا ہے۔ آج مدارس اور مساجد کا سروے ہوتا ہے، ہم مساجد اور مدارس کا سروے نہیں سمجھتے ہیں، ہمارے ایمان کا سروے ہے، ہمارے ایمان کے استقامت کا امتحان ہے۔ مدارس میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے۔ مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ جو قرآن مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے اس کا عملی نمونہ مسجد کے اندر ہوتا ہے۔ آج ہمارے ایمان کا امتحان ہے۔ اور حضرت نے صبح دارالعلوم مہولی پورا کے اندر بیان فرمایا تھا کہ اور بشارت بھی دیا تھا کہ انشاءاللہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو صرف قرآن کی محافظت کی ذمہ اللہ نے نہیں لیا ہے بلکہ حافظوں کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لیا ہے، ان مدرسوں کی بھی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے۔ ارے کوئی احمد ہوگا جو کہے گا کہ یہ گلاس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ بوتل ہے، اس میں پانی ہے، کون بیوقوف کہے گا کہ پانی قیمتی ہے بوتل قیمتی نہیں ہے؟ جب بوتل صحیح سلامت نہیں رہے گا تو پانی کہاں سلامت رہ سکتا ہے؟ اصل قرآن وہ نہیں ہے جو ہمارے کاغذ پہ نقش ہے، اصل قرآن کریم وہ ہے جو ہمارے علماء حفاظ قراء مجودین کے قلوب کے اندر لکھا ہے، اللہ نے لکھا ہے، انہوں نے رات پڑھ کے اپنے قلوب پہ اس کو نقش کیا ہے، وہ کسی کمپیوٹر کے ذریعے نہیں کیا ہے، سیاہی اور قلم کے ذریعے نہیں کیا ہے، اللہ کے فضل کے ذریعے کیا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ وہ معجز کلام ہے، یہ وہ معجز کلام ہے جس قوم نے اس کو پایا تھا، ان کی ایمان کی ایسی تمازت تھی۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22.5 لاکھ میل کے حاصل ہیں اور تکیہ بنائے ہوئے اپنے کھیت کے اندر لیٹے ہوئے ہیں۔ کیسے کسرا آج کا دادا ایران اور روم کے جاسوس اور قاصد آتے ہیں آپ کے جوہر و جلال کو دیکھنے کے لیے، ان کے بدن پر کپ کپی تاری ہوتی ہے۔ دیوالت سے دور، وقت بہت مختصر ہے، ہمارے اکابرین موجود ہیں، مختصراً بتا رہا ہوں، اس قرآن کریم کی برکت ہے۔ یہ قرآن کریم کا عشق تھا جس کے ذریعے جو ایمان نامی اللہ نے دولت ان کے قلوب کے اندر روشن کی تھی، ان سپر پاور طاقتوں کے جو جاسوس آئے ہیں ان کے بدن پہ کپ کپی تاری ہو گئی، سب دانت ایک دوسرے میں لڑنے لگے۔ حضرت کی آنکھ کھلتی ہے اور کہتے ہیں تم کون لوگ ہو؟ کسو ٹھہرو، قابو رکھو اپنے بدن پہ۔ یہ وہ دولت تھی، کوئی وہاں پہ کارندے نہیں تھے، کوئی حضرت کا لاہو لشکر نہیں تھا، کوئی آفس نہیں تھی، لیکن وہ قرآن کریم اندر راسخ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان دشمنوں کے قاصدوں نے چہرہ نہیں ملا سکے، وہ تاب نہیں لا سکے، وہ نور ایمانی جو روشن تھا وہ قرآن۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جایا کرتے تھے تجارت کے لیے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا ہے کہ وہ آخری سفر تھا جب
सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके साथ नहीं थे। सूरज का गोला टूटकर हमारे सीने के अंदर आया है, समा गया है, जिसकी तमाज़त और गर्मी से हमारा सीना शक होने को है, फटा जा रहा है। हजरत इसकी ताबीर क्या है? उस बंदे ने, राहिब ने जब आपका ख्वाब सुना तो कहा, क्या तुम मक्के से आए हो? बोले जी। तो कहा, अबू कुहाफा के बेटे हो? कहा जी। क्या तिजारत के लिए आए हो? कहा जी। कहा, क्या मक्के के अंदर मोहम्मद नाम का कोई तुम्हारा दोस्त रहता है? कहा जी, मेरा दोस्त रहता है इस नाम का। तो कहा, उस ख्वाब की ताबीर ये है कि तुम्हारे दोस्त ने आज सुबह ऐलान नबूवत कर दिया है और भागकर मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर तशरीफ लाए। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के चौधरियों को, उन जाहिलीन मक्का को बैठकर समझा रहे थे, ईमान और इस्लाम की बातें बता रहे थे। हजरत वहाँ पहुँचते हैं और अपने दोस्त से अर्ज करते हैं, ऐ मोहम्मद, क्या तूने अपनी नबूवत का, आपने अपनी रिसालत का ऐलान कर दिया? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नाम, हाँ हमने ऐलान कर दिया। हजरत अबू बकर ने फरमाया, मद्दलीलु अला नबूवती, आपके नबूवत और रिसालत की, आपकी सदाकत की दलील क्या है? आप नबी है, ऐलान कर दिया है, कोई सबूत है आपकी नबूवत का? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अद्दलीलु अला नबूवती मा राअयता फी शाम, मेरे नबूवत की, मेरे रिसालत की दलील यही है जो तुमने रात के अंदर मुल्क के सामने ख्वाब देखा है। ये दोस्तों, ये वो तमाज़त थी, वो नूरे ईमानी, ये कुरान की आयतों की बरकत थी, जिसने आखिरत को तो बनाया ही बनाया, दुनिया चमकाया है। ये कुरान नामी समंदर से आज यहूद और नसारा ये बल्ब बना रहे हैं, ये मैग बना रहे हैं, ये पंखे बना रहे हैं। तमाम उलूम का मजमूआ अल्लाह ने कुरान के अंदर जमा कर दिया है और हमने सिर्फ उसको बरकत की किताब बनाया है, तीजा 40वां की किताब बनाया है। मरने लगे तो यासीन पढ़ा जाए, कब्र में रोशनी करना है तो मुल्क पढ़ा जाए। कुरान से 24 सूरा, 5 सूरा, 8 सूरे, ये सब किताबें छाप कर अपने मतलब की, जैसे कोई एक ठेला लगा कर बैठता है और सेब लेने वाला छांट लेता है, फल खरीदने वाला छांट लेता है, सब्जी खरीदने वाला छांट लेता है। ये कुरान करीम से है। हमने सिर्फ दुनिया को हसीन बनाना सीखा है, हमने आखिरत को हसीन बनाना नहीं सीखा। अगर कहा जाए पूरा न मानिए, हमने तो यहूद और नसारा को छोड़ दीजिए, दुश्मनाने इस्लाम को छोड़ दीजिए, हमें अपनों से शिकवा है, हमारे अपना कितनी इज्जत करते हैं। हमारी गाड़ियां होती है, शीशे पर हम आयतल कुर्सी लिखवाते हैं, स्टिकर लाते हैं, कुल वल्लाह लिखवाते हैं, यासीन लिखवाते हैं, और फिर जब गंदी हो जाती है तो वो गाड़ी धुलने वालों के हवाले करते हैं, और वो धुलने वाला जिस कपड़े से हमारे गाड़ियों के टायर में लगे हुए गोबर और भलासत को साफ करता है, उसी कपड़े से उस शीशे को साफ करता है। यह कौन सी हुर्मती करा रहा कुरान की? वो नंगा कुरान, वो पढ़ला कुरान, जिसको खोलना है तो पढ़ो, वरना बंद करके जुस्तान में रख दो। उस कुरान के खोल कर रखना मना है, बेवजह छूना मना है, बेगुसल छूना मना है। उस कुरान करीम को हमने नंगा कुरान लाए, कैलेंडर पोस्टर, और उसको लेमिनेशन कराया और बेडरूम में लगा दिया। हम मियाँ बीवी मुजामियत में रहते हैं, गालियां बकते हैं, हवाएं हमारी गंदी निकलती हैं, और बंद दरवाजा है, वो बदबू उस खुले हुए कुरान पर जाती है। इस घर में शैतान आएंगे या अल्लाह की रहमत आएगी? इसी गांव से एक साहब ने 40 दिन, बुरा न मानिएगा, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, भूत शैतान बहुत आते थे। सूरह बकरा पढ़ाया 40 दिन, और फिर गालिबन इसी मदरसे के बच्चों ने कुरान करीम पढ़ा और दुआ किया। दूसरे दिन बच्ची पर फिर शैतान आ गया। उन्होंने हमको फोन किया कि मौलाना, मैंने सुना है जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाते हैं। हमने 40 दिन सूरह बकरा पढ़वाई है और आज कुरान खानी भी कराई है, फिर भी शैतान पीछा नहीं छोड़ता है। मैंने उनसे कहा कि फिर से बताइए क्या तुमने हदीस में सुना है? कहा जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाते हैं। तो मैंने कहा तुमने पढ़ा नहीं है, पढ़वाया। इस घर में सूरह बकरा पढ़वाई जाती है तो कोई गारंटी नहीं
गई है। हदीस में है जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है तुमको दुनिया गंवाने से फुर्सत नहीं है, तुम एक सूरत की तिलावत नहीं करते हो, बस खरीद कर लाते हो बरकत के लिए दीवार पर टांग दिया। तुमने अपनी जिंदगियों में कुरान यहाँ दाखिल करना चाहिए था दिल पर, तो तुमने उसको टांगा है दीवारों पर। अल्लाह अकबर। हमारे प्यारे लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले बरकत वाले स्पीकर लाते हैं कुरान करीम के और शीशे के पास टांग देते हैं। पूछिए उलमा से मसला, जिस तरह बेवजू और बेगुसल कुरान पूरे कुरान को छूना हराम है, इसी तरीके से कुरान की एक आयत को भी छूना हराम है। बताओ, हमारे टेम्पू वाले ऑटो वाले सब लटकाए हैं, बैठने वाला जो बैठता है हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पाक है नापाक है, बैठता है हाथ लगा देता है। जो हमारे सवारी बैठते हैं उनके बच्चे भी उसको पकड़ते हैं और उसके पेशानी पे बल नहीं आता है कि कुरान को हम बरकत के लिए लगाए हैं। ये कैसी बेहुरमती है। और ये जो चलता फिरता कुरान है जिसको हम उलमा और हुफ्फाज कहते हैं, इनका कितना अदब करते हैं। ये असल कुरान तो ये है, लाखों कुरान अंग्रेजों ने जलाए थे, लेकिन जब तक ये कुरान रहेगा तब तक कुरान खत्म नहीं हो सकता है। खुदा न खास्ता कुछ हो जाए तो लानतान शुरू हो जाती है। अरे कुरान का कोई वर्क, कोई सफा फट कर नीचे गिर जाए, नोच कर गिर जाए, टूट कर कहीं गिर जाए, तो क्या वो कुरान नहीं रहता है क्या? उसकी तिलावत बना है, एहतराम वही है। हम में से सब आदम की औलाद है, जिब्राइल और मीकाईल की कोई औलाद नहीं है। अगर कुछ हो जाता है लानतान शुरू, उन्हीं की तकरीर की जाती है, उन्हीं को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। जो उलमा हुफ्फाज मदारिस से मुंसलिक होते हैं, जो उलमा, जो कारी, जो हाफिज बिजनेस से मुताल्लिक है, उनका एहतराम नहीं किया जाता। अरे क्यों नहीं किया जाता? तुम्हारी नजर में वो बिजनेसमैन होगा, लेकिन अल्लाह ने अपने मुकद्दस कलाम की हिफाजत के लिए उसके दिल को चुना है। वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद दुनिया, अल्लाह उसके दिल को महबूब न समझता तो अपना मुकद्दस कलाम उसके दिल में न डालता। हम जिसको अपना महबूब समझते हैं उसको अपने घर में जगह देते हैं। अल्लाह जिसके दिल को महबूब समझता है उसके दिल को अपने कलाम का घर बनाता है। यूं तो आमद उनकी हर दिल में, शायर कहता है यूं तो आमद उनकी हर दिल में है, देखना ये है कि घर किस दिल में है। यूं तो सभी कहते हैं प्रधानमंत्री का तैयारा हमारे घर से गुजरा है, उसका कमाल देखो, प्रधानमंत्री मेहमान किसके बनते हैं। ये तो सभी कुरान की तिलावत करते हैं, ये मकाम देखो, पूरा कलाम किस किसके दिल में घर किए हुए हैं। अजीज दोस्तों, मैं तिलावत से दूर रहते हुए अब हमारे अकादमीन मौजूद हैं, इनके सामने बैठा था तभी हमारी जबान सूख गई थी, इसलिए कुछ और मजीद न कह पाऊंगा। इतना कहता हूँ, जिस तरह इस कुरान का एहतराम किया जाए, उसी तरह जहाँ पे कुरान पढ़ा जाए, इन मदरसों को दकियानूसी अड्डा बनाया जाता है, कमाने खाने का जरिया बनाया जाता है। जिस दिन मदरसे मिटे तुम मुसलमानों याद रखो, छोटा मुंह बड़ी बात बोल रहा हूँ, हमारी वजूद, हमारे ईमानी वजूद का उसी दिन खात्मा होगा। ये गलत फहमी में न रहिए, मुल्ला चले गए, मस्जिद खत्म हो गई और मदरसे खत्म हो गए तो मुसलमान बाकी रहेंगे। उस दिन याद करोगे, दास्तान सुनाओगे कि कहीं मुसलमान बसते थे। सरकारें तो बाद में बंद करना चाहती हैं, मुसलमान पहले बंद करना चाहते हैं। अगर चाहते हो कि हमारा ईमानी वजूद बाकी रहे और बचा रहे और बना रहे तो इन इदारों को मोहब्बत की निगाह से देखो, जेब से ताउन हो तो ताउन करो, वरना जबान से उनकी तारीफी कलमे कहो, उनके पेट पीठ पर शाबाशी हाथ रखो, बगावत की जबान को बंद करो, कफ्फे लिसान को वाजिब कर लो, वरना तुम्हारी नस्लों से दीन इस तरह निकलेगा जिस तरह गुंदे हुए आटे से औरत बाल निकालती है, एहसास नहीं होता है। अल्लाह कहने से ज्यादा हमें